Hello everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we are going to start the last chapter of English literature. The name of the chapter is A Strand of Cotton. So let's get started with its introduction. It is the story of a school teacher who is faced with the moral predicament. यह एक स्कूल के अध्यापक की कहानी है जो नैतिक दुविधा में फंस जाता है. He teaches a low caste boy सीताराम to earn some extra money. वह एक निम्न जाति के लड़के सीताराम को पढ़ाता है ताकि वह कुछ और पैसे कमा सके. बट द विलेज हेडमैन राम सिंह, हिज हेंचमैन रेलू एंड अदर विलेजर्स ऑफ अपर कास्ट ऑब्जेक्ट टू हिज दिस प्रैक्टिस. लेकिन गांव का नंबरदार राम सिंह, उसका अनुचर रेहुलू और ऊंची जाति के दूसरे लोग इस प्रक्रिया पर आपत्ति करते हैं. He hits back by exposing them. वह उनको ईंट का जवाब पत्थर से देता है. Yet he can't get rid of his upper caste consciousness symbolized by a strand of cotton that he always keep on his body. फिर भी वह ऊंची जाति के एहसास से मुक्ति पाने में असफल रहता है. उस ऊंची जाति के एहसास का प्रतीक है उसका जनेऊ, धागे की लड़, जिसको वह अपने शरीर पर सदा पहनता है. He continues to be in the state of faith and doubt. वह आस्था और संदेह की स्थिति में रहता है. He breaks the thread of decayed consciousness when his student Sitaram is murdered by the boys of upper caste. वह आवनत एहसास के धागे को उस समय तोड़ देता है जब उसके विद्यार्थी सीताराम की हत्या ऊंची जाति के लोगों द्वारा कर दी जाती है. The village headman tries to defend and save the murderers. गांव का नंबरदार हत्यारों को बचाने का प्रयत्न करता है. So this was the introduction. Now we are going to start its summary. So here it is. This is the story of a school teacher. यह कहानी एक स्कूल के अध्यापक की है. He was a Brahmin by caste and his name was Prabhat. He wore a sacred thread made of strand of cotton like many upper caste Hindus. वह जाति का ब्राह्मण था और उसका नाम प्रभाव था. वह बहुत उच्च जाति के हिंदुओं की तरह जनेऊ पहनता था. प्रभात lived in a stone hut. It was situated on mountain near the Tons river. As a Brahman, he pulled at his sacred thread and wound it round his ear when he went to answer the calls of nature. The untouchable dooms also lived in their huts. They also relieved themselves on the ground. Then they went to the river Tons for a wash. प्रभात पत्थर की झोंपड़ी में रहता था. यह टोन्स नदी के पास पहाड़ पर स्थित थी. वह जनेऊ को उतार कर कान पर लटका लेता था जब वह पाखाना करने जाता था, यानी जब वो वॉशरूम जाता था. दलित लोग भी वहाँ रहते थे. वे भी ज़मीन पर पाखाना करते थे. तब वे पीठ साफ करने के लिए टोन्स नदी पर जाते थे. There was not much difference between Prabhat's life and that of the untouchables. They all lived from hand to mouth. They borrowed money from moneylenders. Prabhat had worries of his own. He had to come on the expectations of people. प्रभात और दलित लोगों के जीवन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था. उनको उनका बड़ी कठिनाइयों से गुजारा होता था. वे शाहूकारों से पैसे उधार लेते थे. ब्राह्मण का भाग्य भी दलितों के भाग्य से अच्छा नहीं था. प्रभात की अपनी चिंताएं थीं. उसे लोगों की आशाओं पर पूरा उतरना होता था. At this very time, a boy belonging to a lower caste, Sitaram, greeted him. His mother sent him money from a brothel in Delhi for his education. He had a strong body. He went to school with the sons of Brahmins and other caste boys. Prabhat gave him tuition for earning extra money. His coming to Prabhat for special coaching was the cause of bickering in the village. इसी समय एक नीच जाति के बेटे सीताराम ने उसका अभिवादन किया. उसकी माता दिल्ली में वैश्यालय से उसे पढ़ाई के लिए पैसे भेजती थी. उसका शरीर हष्ट पुष्ट था.
वह ब्राह्मणों के बेटे और दूसरे उच्च जाति के लड़कों के साथ स्कूल जाता था। प्रभात ने फालतू पैसे कमाने के लिए उसकी ट्यूशन रखी, मीन्स एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए। प्रभात के पास उसका विशेष प्रशिक्षण के लिए आना गांव के क्लह का कारण था, मीन्स गांव में डिस्प्यूट्स राइज हो गए इस वजह से कि वो एक अनटचेबल को कोचिंग दे रहा है। राम सिंह द विलेज हेडमैन टोल्ड प्रभात that he was doing a wrong thing by giving special coaching to Sitaram. Prabhat told him that he had to make both ends meet by earning some extra money. None of the upper caste boy was coming to him, so he had to teach a lower caste boy. The son of upper caste were interested in wine and women, nothing else. He was not doing anything wrong. गांव के मुखिया राम सिंह ने प्रभात को बताया कि वह सीताराम को विशेष प्रशिक्षण देकर गलत काम कर रहा था। प्रभात ने उसे बताया कि उसने कुछ फालतू पैसा कमाकर अपना निर्वाह करना होता है। उच्च जाति का कोई लड़का उसके पास नहीं आ रहा था, इसीलिए उसे नीची जाति के लड़के को पढ़ाना पड़ता था। उच्च जाति के लड़के शराब और औरतों में रुचि रखते हैं। उनमें से बहुत से लोग अनैतिक ढंग से धन कमाते थे। वह कोई गलत काम नहीं कर रहा था। He cursed himself for being a Brahmin. He couldn't even relieve not doing anything wrong. He cursed himself for being a Brahmin. He couldn't even relieve himself without hanging a piece of string from his ear. He suddenly felt angry with himself. He pulled the string off. He feared that the god would punish him for pulling the string off. He felt a sense of guilt because he was buying food with the earning of prostitution. Sitaram's mother was a prostitute. He was waiting for Sitaram to come and have his lessons. It was past 11 and Sitaram had not yet come. Prabhat wondered as to what happened to Sitaram. He thought of going to Untouchable's quarters and calling him. He put on his dress. He wore a cotton skirt and coat. His wife gave him his stick. He was about to leave. उसने ब्राह्मण होने के लिए स्वयं को कोसा। वह जनेऊ को अपने कान पर टांगे बिना पाखाना करने नहीं जा सकता था। उसे अचानक स्वयं पर क्रोध आया। उसने जनेऊ उतार दिया। उसे भय था कि जनेऊ उतारने के लिए देवता उसे सज़ा देंगे। उसे अपराध की भावना का बोध हुआ क्योंकि वह वैश्यावृत्ति की कमाई से भोजन खरीद रहा था। सीताराम की माता एक वैश्या थी। वह सीताराम की अपने पाठ सिखाने के लिए आने की प्रतीक्षा करने लगा। 11 बज चुके थे और सीताराम अभी तक नहीं आया। प्रभात को आश्चर्य था कि सीताराम को क्या हो गया था। उसने दलितों के क्वार्टर में जाकर उसे बुलाने का विचार किया। उसने अपने कपड़े पहने। उसने सूती कमीज़ और कोट पहना। उसकी पत्नी ने उसे उसकी छड़ी दी। वह जाने ही वाला था। जस्ट एट दैट टाइम Sitaram's elder brother came weeping. Prabhat was shocked to know from him that Sitaram had been murdered. He felt very angry. Ironically, Prabhat said that gods had punished him by taking away the life of his pupil. उस समय सीताराम का बड़ा भाई रोता हुआ आया। उसे सीताराम के बड़े भाई से जानकर दुख हुआ कि सीताराम की मौत हो गई है, उसको यानी मार दिया गया है। उसे बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि देवताओं ने उसके शिष्य की जान लेकर उससे सज़ा दी है। Sitaram's elder brother told him that the local representative came to their area that morning. He told that the untouchables there was to be an election. To start the election campaign, he told the untouchables to break the ban on entering the temple. He told Prabhat that his brother had gone for his lessons. He didn't want to miss a lesson at any cost. He added that Relu and his gang caught him near the temple. He pleaded that he was innocent, but they were cruel. He further told Prabhat
that Sitaram's dead body was lying near the temple. सीताराम के बड़े भाई ने उसे बताया कि स्थानीय प्रतिनिधि उस सुबह उनके क्षेत्र में आया था। उसने दलितों को बताया कि वहाँ एक चुनाव होना था। चुनाव अभियान आरंभ करने के लिए उसने उन्हें बताया कि वह मंदिर में उनके प्रवेश के निषेध को तोड़ दे। उसने प्रभात को बताया कि उसके भाई अपने घर पर पाठ तैयार कर रहा था। वह किसी भी कीमत पर अपना पाठ छोड़ना नहीं चाहता था और पाठ सीखने जाने के लिए ज़िद की। उसने कहा कि रेलू और उसके गेरू ने, यानी उसकी जो गैंग थी, उसे मंदिर के निकट पकड़ लिया। उसने प्रार्थना की कि वह निर्दोष था, लेकिन वे निर्दयी थे। उसने फिर प्रभात को बताया कि उसका मृत शरीर मंदिर के पास पड़ा हुआ है। The village assembly met in the temple. Prabhat's wife told him to go and do his duty. Prabhat came to the temple. Sitaram's dead body was there, covered with white sheet. The headman began to address the gathering on the murder of Sitaram. गांव की सभा मंदिर में इकट्ठी हुई। He said that according to some, Sitaram had struck the temple priest. प्रभाव की पत्नी ने उसे बताया कि वह जाकर अपने कर्तव्य पूरा करे। गांव की सभा मंदिर में इकट्ठी हुई। प्रभात की पत्नी ने उसे बताया कि वह जाकर अपना कर्तव्य पूरा करे। प्रभात मंदिर में आया। सीताराम का मृत शरीर सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। मुखिया ने सीताराम की हत्या पर भीड़ को भाषण देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि किसी के अनुसार सीताराम ने मंदिर के पुजारी को आतंकित किया था। He said that and according to others he was innocent. दूसरों के अनुसार वह निर्दोष था। This was known to all that he was killed by the mob. यह सबको पता था कि वह उत्तेजित भीड़ द्वारा मारा गया था। प्रभात said that one of the village sons had been killed. प्रभात ने कहा कि गांव का एक बेटा मारा गया था। There should be justice in the case. केस में न्याय होना चाहिए। The headman asked the gathering if anyone could name the killer. मुखिया ने भीड़ से पूछा क्या कोई हत्यारे का नाम बता सकता था। No one said a word because no untouchable had the guts to give evidence against Relu and his gang. किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि किसी दलित में रेलू और उसके गिरोह के विरुद्ध गवाही देने का साहस नहीं था। The headman wanted to settle the matter according to a village custom. मुख्य आदमी गांव के रिवाज के अनुसार मामले का निर्णय करना चाहता था। प्रभात फेल्ट सफोकेटेड। प्रभात को घुटन महसूस होने लगी। He wanted the matter to be decided by the law of the land. वह देश के कानून द्वारा मामले का निर्णय करना चाहता था। He removed his sacred thread and broke it. उसने अपना जनेऊ उतारा और उसे तोड़ दिया। He threw it to an untouchable woman. उसने इसे एक दलित महिला पर फेंक दिया। प्रभात was a changed man now. प्रभात अब एक परिवर्तित व्यक्ति था। He was twice born without the shackles of caste. वह जात पात के बंधनों से मुक्त द्विजन्मा था। The untouchable crowd began to grow bigger. दलितों की भीड़ बढ़ने लगी। प्रभात was going to organize them to fight for justice. प्रभात उन्हें न्याय के लिए लड़ने के लिए संगठित करने लगा। They grew away their traditional limits. उन्होंने अपने परंपरावादी सीमाएं तोड़ दी। So this was the summary. Now we are going to consider important questions of this chapter. So the first question is write a character sketch of सीताराम. सीताराम यानी जो उसका प्यूपिल था प्रभात का, उसके बारे में हमें कुछ लिखना है। Sitaram is a school-going boy. His mother is a prostitute in Delhi. He studied with the upper caste boys in a school. His mother sends him money for spending on his tuition. He goes to Prabhat, the school teacher, for tuition. He is healthy and good-looking like the upper caste boys. The upper caste boys do not like that he should be much interested in studies. Relu and his gang hatch a
conspiracy to kill him, he is caught near the temple and killed. सीताराम एक स्कूल जाने वाला लड़का है। उसके माता दिल्ली में वैश्या है। वह स्कूल में उच्च जाति के लड़कों के साथ पढ़ता है। उसकी माता ट्यूशन पर खर्च करने के लिए उसे पैसे भेजती है। वह स्कूल के अध्यापक प्रभात के पास ट्यूशन के लिए जाता है। उच्च जाति के लोग पसंद नहीं करते कि उसे पढ़ाई में इतनी रुचि लेनी चाहिए। रेलू और उसका गिरोह यानी उसकी गैंग उसे मारने का बंदोबस्त रचते हैं और उसे मंदिर के पास पकड़ा जाता है और मार दिया जाता है। He is an innocent boy. He had done nothing wrong to the upper caste boys. They felt jealous of his desire to learn more as a school student. It's the jealousy of the upper caste people which led to his murder. वह एक निर्दोष लड़का है। उसने उच्च जाति के लोगों को हानि नहीं पहुंचाई है। वह स्कूल शिष्य के रूप में उसके ज़्यादा सीखने की इच्छा से ईर्ष्या करते हैं। वह उच्च जाति के लोगों की ईर्ष्या से जिसने उसकी हत्या कर दी, मीन्स जो लोगों की जेलसी थी, दे मर्डर्ड हिम बिकॉज ऑफ दैट। दिस मर्डर लेफ्ट अ पावरफुल इफेक्ट ऑन प्रभात. प्रभात फेल enraged when he heard of his murder at the hands of upper caste people. Prabhat threw away his sacred thread and began to fight for justice for the innocent Sitaram. He began to mobilize the untouchables soon after the murder of Sitaram. उसकी हत्या ने प्रभात पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव छोड़ा। प्रभात को गुस्सा आया जब उसने उच्च जाति के लोगों के हाथों उसकी हत्या के बारे में सुना। प्रभात ने अपना जनेऊ फेंक दिया और निर्दोष सीताराम के प्रति न्याय के लिए लड़ाई शुरू कर दी। उसने सीताराम की हत्या के बाद दलितों को संगठित करना शुरू कर दिया। His murder brings out the hypocrisy of temple priest. He must have accused Sitaram of being struck him. Sitaram became a martyr to the hatred of upper caste people for the low caste. His life might have been saved if temple priest had not told a lie. उसकी हत्या पुजारी की बगुला भक्ति दिखाती है। वह सीताराम को उसे मारने के लिए अवश्य दोषी ठहराता। सीताराम नीच जाति के लिए उच्च जाति की घृणा के कारण शहीद हो गया। उसका जीवन बचाया जा सकता था यदि मंदिर का पुजारी झूठ ना बोलता। Now we are going to consider the next important question, that is discuss the theme of casteism. जो कास्ट का थीम यहाँ पर चैप्टर में चलाया गया है उसको डिस्कस करें। So this story is based on the theme of casteism. यह कहानी जात पात के विषय पर आधारित है। The village in the story was inhabited by upper caste people and untouchables. कहानी में गांव के निवासी उच्च जाति के हिंदू या दलित थे। Upper caste people had a big say in running the affairs of the village. गांव के कार्य चलाने के लिए उच्च जाति के हिंदुओं को अधिक निर्देश देने होते थे, मीन्स ज़्यादा निर्देश उनके चलते थे अपर कास्ट लोगों के। द अनटचेबल्स वर वेरी पुअर. दलित बहुत गरीब थे। दे लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ. वे बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। दे वॉज अ पुअर टीचर ऑल्सो. वहाँ एक गरीब अध्यापक भी था। ही बिलोंग टू द अपर कास्ट बट ही वॉज अ पुअर एज द अनटचेबल्स. वह उच्च जाति से संबंध रखता था लेकिन वह भी उतना ही गरीब था जितने कि दलित। ही गेव ट्यूशन टू अ लो कास्ट बॉय टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी. इसीलिए उसे फालतू पैसा कमाने के लिए एक नीच जात के लड़के को ट्यूशन रखती। उसको ट्यूशन पढ़ानी स्टार्ट करी। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही विश्ड ही हैड नेवर बीन बॉर्न अ ब्राह्मण. कभी कभी वह इच्छा करता था कि वह कभी ब्राह्मण पैदा ना होता। द अपर कास्ट पीपल डोमिनेटेड द विलेज. उच्च जाति के लोगों का गांव पर प्रभुत्व था। द विलेज हेडमैन वॉज ऑल्सो द अपर कास्ट. गांव का मुखिया भी उच्च वर्ग से था। अकॉर्डिंग टू द हेडमैन द विलेज हैड इट्स ओन कस्टम्स. मुखिया के अनुसार गांव के अपने रिवाज थे। देयर लाइव्स वर गवर्न्ड बाय सम रूल्स. कुछ नियम उनके जीवन पर राज्य करते थे। देयर टास्क्स एंड ड्यूटीज़ वर डिवाइडेड अप व्हेन द टेम्पल वॉज बिल्ट. जब मंदिर का निर्माण हुआ था कुछ काम और कर्तव्य बांटे गए थे। सम वर्शिप्ड इनसाइड द सेक्रेड रूम,
some in the temple and some during the festivals. कुछ पवित्र कमरे में पूजा करते थे, कुछ मंदिर में और कुछ त्योहारों के दौरान. People of the village understood the workings of their religion. गांव के लोग अपने धर्म के कार्य को समझते थे. सीताराम was a low caste boy. सीताराम एक नीच जाति का लड़का था. His mother was a prostitute in Delhi. उसकी माता दिल्ली में वेश्या थी. She used to send him money for his upkeep. उसे ऊपर उठाने के लिए धन भेजा करती थी. He started having a tuition with the teacher प्रभात. उसने अध्यापक प्रभात के पास ट्यूशन रख ली. If his mother had not been sending him money, he would have become a bonded laborer. यदि उसकी माता पैसे ना भेजती वह एक बंधुआ श्रमिक बन जाता, एक मज़दूर बन जाता. He might have stopped going to school. वह शायद स्कूल जाना बंद कर देता. But he was going to school along with upper caste boys. वह उच्च जाति के लड़कों के साथ स्कूल जा रहा था. This became a cause of bickering in the village. गांव में यह कलह का कारण बन गया. The upper caste people cornered him near the temple and killed him. उच्च जाति के लोगों ने उसे मंदिर के निकट घेरा और मार दिया. The local representative also made use of caste sentiment at election time. स्थानीय प्रतिनिधि ने भी चुनाव के समय जात पात की भावना का प्रयोग किया. He pressed a few low caste boys into the temple where their entry was forbidden. उसने नीची जाति के कुछ लड़कों को मंदिर में धकेल दिया जहां पर उनके प्रवेश पर प्रतिबंध था. He also raised the slogan महात्मा गांधी की जय. उसने यह भी नारा लगाया महात्मा गांधी की जय. This was an act of religious reformation. यह धार्मिक सुधार का कार्य था. The upper caste boy didn't like this. ऊंची जाति के लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी. रेलू and his gang caught hold of सीताराम near the temple and killed him. रेलू और उसके गिरोह के साथियों ने सीताराम को मंदिर के नज़दीक पकड़ लिया और उसकी हत्या कर डाली. The upper caste people took their revenge. ऊंची श्रेणी के लोगों ने उससे बदला लिया. The feeling of casteism was so high in the village that murder case was not allowed to be taken to a city court. गांव की जात पात की भावना इतनी प्रबल थी कि हत्या के केस को शहर की कचहरी में ले जाना भी आज्ञा नहीं दे सके. The headman started addressing a gathering of villagers. मुखिया ने ग्रामीणों की भीड़ को संबोधन करना शुरू कर दिया. He pointed out the benefits of the customary law. उसने प्रथागत कानून के लाभ बताने शुरू कर दिए. He wanted the case of murder to be decided in the village on the basis of blood money to be given to the individual casters. वह चाहता था कि केस का निर्णय गांव में ही व्यक्तिगत जातियों को हत्या धन के लिए वह चाहता था कि केस का निर्णय गांव में ही व्यक्तिगत जातियों के हत्या धन के लिए दिए जाने के आधार पर हो जाए. It is a different thing that प्रभात inspired the untouchables to rebel. यह अलग बात थी कि प्रभात ने दलितों को विरोध करने के लिए प्रेरित किया. And with this we come to the end of this video. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching and do not forget to check out playlist for more important questions of literature as well as important units and their rules for grammar. Thank you for watching.